Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So, can you see the screen? Good morning, sir. Okay. Yes, sir. Happy Dasara, sir. Happy Dasara to all. Good morning, sir. Good morning. Okay. So in the last class, did we start this Kepler's laws of motion? Yes, we started, right? Yes, sir. Yes, sir. सर आपने वो ग्रेविटेशनल वाला कुछ बताया था कि आप वो करके स्टार्ट करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आपकी वॉइस नहीं आ रहा है सर। Hello. Yeah. Yes, sir. Okay. अब आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ सर आ रही है आवाज। Okay. सर आप वो ग्रेविटेशनल वाला कुछ बताने वाले थे, आपने बोला था। ग्रेविटेशन वाला आज हम Class उस पे के end में आ सर। जाएंगे, तो एंड में हम कर देंगे उसको, ठीक है ना? ओके सर, क्लास के एंड में आज कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। ओके, सो हमने 3 लॉज लिखे थे केपलर्स के। ओके, द फर्स्ट लॉ इज व्हाट, दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द elliptical orbits around the sun as a focus. Okay, second law was what? Aerial speed. The aerial velocity or aerial speed is constant. Okay, and third was the time period is proportional to what? A to the power 3/2. Okay, so now let's do some properties of ellipse. Okay, so we are going to learn about elliptical orbits and properties, so it is better to understand what are the properties of ellipse. Okay, so let us understand some basic properties and features of ellipse. Okay, so in the ellipse, okay, so as you know, in the ellipse there are 2 axes. Okay, so this is what? A, which is, what is A? मेजर एक्सिस। Semi major axis. देखिए, major axis is the full thing, right? From here to here. A is the semi major axis. Okay, and this is B. So what is B? सेमी माइनर। Semi minor axis. Semi minor axis. Okay, so now tell me, in terms of B and A, what is the eccentricity E? बताइए क्या होता है?
in terms of A 1 and B, plus what 1 is plus eccentricity E? So E is given by under root of 1 minus B square by A square. Okay. So this is the property. Okay. तो किसी सिस्टम का अगर आपको semi major axis and semi minor axis is given, then you can find eccentricity of that system ellipse. Okay. Now tell me, so this is the focus. So this is the focus of ellipse. अब बताइए ellipse में, ठीक है, तो फोकस है ये, तो ellipse में फोकस से सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है? ये होगी. ओके, so this is EA. Okay, this is EA. ओके, तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस क्या है? E है. तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 माइनस A माइनस E. तो देखिए यहां पर फोकस से ये ऑर्बिट है, तो फोकस से मिनिमम डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, राइट? सो दिस इज इक्वल टू R1, है ना? और फोकस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है? ये वाला. दिस इज इक्वल टू R2. तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? A प्लस E है, राइट? 1 plus E into E. So what is R1? R1 is minimum distance from focus. या फिर in case of planetary motion minimum distance from sun. और R2 क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस. फ्रॉम सन. ओके, तो एक इक्वेशन तो ये है आपके पास. तो यहां पर देखिए इंडिपेंडेंट पैरामीटर सिर्फ दो है. कौन कौन से? A और B. अगर A और B पता है आपको तो E निकाल सकते हो, और E निकाल सकते हो तो R1 R2 दोनों निकाल सकते हो. ठीक है, अब बताइए मुझे R1 प्लस R2 क्या है? R1 प्लस R2 1 माइनस E प्लस 1 प्लस E. तो E है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 है, और होना भी चाहिए 2 है, क्योंकि R1 प्लस R2 क्या है? मेजर एक्सिस है, और सेमी मेजर एक्सिस A है, तो मेजर एक्सिस कितना होगा? 2A होगा. ओके, और R1 इंटू R2 कितना है बताइए? R1 इंटू R2 इज 1 माइनस E इंटू A इंटू 1 प्लस E इंटू A. ओके, so R1 into R2 is 1 minus E square into A square. अब बताइए यहां से हम देखें तो क्या हो जाएगा? E square is equal to 1 minus B square by A square. तो B square is equal to आ जाएगा A square 1 minus E square. A square into 1 minus E square is B square. So R1 into R2 is B square. Okay. So there are two parameters, है ना? देखिए हमने यहाँ पर देखे 5 पैरामीटर देखे, इसमें से इंडिपेंडेंट कितने बताइए?
दो है सर। इंडिपेंडेंट मतलब कि जो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे। तो दो है इंडिपेंडेंट। अगर आपको ए और बी पता हो तो बाकी के ई, R1 और R2 निकाल सकते हो आप, है ना? सिमिलरली अगर आपको R1 और R2 पता है तो ए बी ई निकाल सकते हो, है ना? तो ये 5 है, R1, R2, ए बी एंड ई। इसमें से कोई भी दो पता हो तो बाकी के आप 3 निकाल सकते हो। क्लियर है? और उन तीनों को निकालने के फॉर्मूले आपको याद रखना है। R1 ये याद रखना है, 1 minus a, 1 minus e into a, and you have to remember the definition also, that R1 is the minimum distance from the sun or focus, R2 is the maximum distance from the sun, okay? E is eccentricity, R1 plus R2 is 2 into a, and R1 R2 is d square. Okay, so these are the basic properties of ellipse that you should all know, and out of 5 parameters 2 are independent. So if a and b is given, you can find R1, R2 and e. If R1 and R2 given, then you can find a, b and e. Okay, so out of 5 any 2 is given, then it is fine. Okay, write this down, then we'll do one question. Okay, so in the planetary motion, you just have to remember these properties of ellipse. So in the college, you guys have today, you guys have holiday for Dussehra? हाँ सर, 6 तक बंद है सर। Okay. So दशहरे पे तो काफी दिनों की छुट्टियां होती है ना यार? हाँ? 2 Usually तारीख दशहरे पे- से थी सर, 2 क्या से हुआ? 6 तक, 2 से 6 तक रही थी सर हमारे। अच्छा, 2 से 6 तक रहेगी। तो 2 से 6 तक आपकी किसी भी दिन क्लास हो जाएगी, किसी भी टाइम पे? मतलब कॉलेज की बात कर रहे हैं सर आप ना? हाँ, यस, कॉलेज। हाँ तो छुट्टी है ना सर। अच्छा, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये ऑनलाइन क्लासेस। हाँ सर, तो सुबह में मोस्टली कर रहे हैं, मतलब रात वाली जो है ना 7 से 9 वो नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न नहीं हो रही अभी। अच्छा अच्छा, ओके। लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, so now let us do minimum and maximum speed, okay, in planetary motion. Okay, planetary motion में minimum और maximum speed. So again we will draw the ellipse. Okay. Now tell me, in the planetary motion, angular momentum is conserved. Okay. So first of all, this is our second this is the Kepler sun. second law. Okay. Okay. And this is the R1. Okay. Which is the minimum distance from the sun. This is the R2, which is the maximum distance from the sun. Okay. So planetary motion, angular momentum is conserved. So suppose here it is velocity is v1, that means speed is v1, and here it is v2. Okay. So now tell me, the angular momentum is what? mv into r. Okay. So angular momentum is conserved. That means mvr is conserved. So v will be maximum when r will be minimum. Yes. Is it clear? Okay. Angular momentum is mv into r. So v will be maximum at what point? When r will be minimum. Okay. So r is minimum here.
So this V1 is what? Maximum speed. R1 is minimum distance. Minimum distance. And V1 is maximum speed. Okay. Now, what is the minimum speed when R will be maximum? So R maximum is R2. So V2 will be what? Minimum speed. Okay. Okay. So now if R1 and R2 are given, then we have to find the minimum speed. Now suppose this is point number 1 and this is point number 2. Okay. So angular momentum is conserved. That means L1 is equal to L2. Now tell me what is L1? M V1 into R1 is equal to what is L2? M V2 into R2. So M will be cancelled. Okay. So from here we'll get the relation V2 by V1 is equal to R1 by R2. This is the equation number 1. Okay. So we get the relation between the two speeds in the form of distance. Okay. And this equation comes from conservation of angular momentum. Okay. So now tell me, central force is what? A conservative force. That means energy will also be conserved. Okay. So that means what? That means E1 is equal to E2. Okay. Now tell me what is E1? Kinetic energy at 1 plus potential energy at 1. So what is kinetic energy at 1? Half M V1 square. What is potential energy at 1? Minus G GM by R1. M by R1 is equal to. What is kinetic energy at 2? Okay. Yes. So from here, we will get, first of all, small m will be cancelled. Okay. So we will get V1 square minus V2 square, okay, is equal to, there is 2 here, 2 into G into M, 1 by R1 minus 1 by R2. Okay. V2 को इधर ले आए और इसको इधर ले गए. Okay. Okay. So now what is V1 square minus V2 square? So V2 square को यहाँ से रख दो एक बार. So V2 is what? In terms of V1? R1 upon R2. So V1 square minus V2 is what? R1 square by R2 square into V1 square is equal to 2GM. Here it is R2 minus R1 divided by R1 R2. Okay. So from here V1 square we take common. So this will be equal to 1 minus R1 square by R2 square. So it will be R2 square minus R1 square divided by R2 square
this is equal to 2gm r2 minus r1 divided by r1 r2. Okay. So v1 square is equal to what? See here it is r2 minus r1. अब r2 square minus r1 square. So from here one r2 minus r1 factor will be cancelled. Yes. What will be remaining? R2 plus R1. 2 plus r1. और नीचे है यहाँ पर r2 square और यहाँ पर है r1 r2. So one r2 will be cancelled. Okay. So final term will be 2gm. Okay. Divided by 2gm divided by r1 plus r2 into r2 by r1. Okay. तो v2 आपका आ जाएगा ये v1 आपका ये आ जाएगा इसका अंडर रूट. So v1 will be this. Okay. अब बताइए अगर r1 r2 दिया हुआ है तो हमारा v1 ही आ गया. अगर मान लो in the question the parameters are not given in terms of r1 and r2, they are given in terms of a and e and b, तो क्या होगा बताइए. तो v1 is equal to अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r1 प्लस r2 कितना है इन टर्म्स ऑफ a? 2a सर. 2a. 2A. r2 कितना है इन टर्म्स ऑफ a and d? A 1 plus E. 1 प्लस e इंटू a. और Yes. r1 कितना है इन टर्म्स ऑफ e एंड a? R minus E. तो v1 आपका कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ gm बाय a इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e. सो 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e. ठीक है. तो देखिए v1 ये है, तो बताइए v2 क्या होगा? सिंपली यहां पर r1 r2 को एक्सचेंज कर देंगे, है ना. तो r1 ऊपर चला जाएगा, r2 नीचे आ जाएगा. तो v2 विल बी इक्वल टू 2gm बाय r1 प्लस r2 इंटू r1 बाय r2. और अगर इसकी फॉर्म में लिखना है तो अंडर रूट gm बाय a. अब 1 माइनस e ऊपर आ जाएगा आपका एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस. ओके. तो बताइए अब इसमें याद कैसे रखना है? देखिए 2gm बाय r1 प्लस r2 फैक्टर तो सेम है. अब r2 बाय r1 या r1 बाय r2 होगा. तो बताइए v1 मिनिमम स्पीड है मैक्सिमम स्पीड है? मैक्सिमम सर. मैक्सिमम है ना. मैक्सिमम. मतलब r2 ऊपर होना चाहिए क्योंकि r2 ज्यादा है. हाँ v2 मिनिमम स्पीड है, इसका मतलब है कि r1 ऊपर होना चाहिए क्योंकि r1 मिनिमम है ना. और यहाँ पर v1 में ऊपर 1 प्लस e होना चाहिए और यहाँ पर 1 माइनस e होना चाहिए क्योंकि v1 ज्यादा है. okay? तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, v1 इन टर्म्स ऑफ r1 r2 और एक v1 इन टर्म्स ऑफ e. और बाकी v2 में बस r1 r2 को एक्सचेंज कर देना है और 1 प्लस e ऊपर आ जाए नीचे आ जाएगा और 1 माइनस e. सर एक स्लाइड बैक कर दीजिए. ये लिख लिया सबने? यस सर. उसके बाद में कर देंगे. So these are the minimum and maximum speeds in a orbit.
तो देखिए अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस पता है, मतलब R1 एंड R2 यू नो, देन यू कैन इजीली फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड। लिख लिया सबने ये? Yes, sir. ये आपने बोला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हो गया सर। हैं। ओके, okay, so we have found that V1 is equal to under root 2gm by R1 plus R2 into R2 by R1 is equal to under root of gm by A into 1 plus E by 1 minus. ये तो अगला पार्ट लिखिए अब कि व्हाट इज द एनर्जी। तो एनर्जी E तो कांस्टेंट है, तो या तो E1 निकाल लो या E2 निकाल लो, बात एक ही है। तो E इज इक्वल टू E1 देख लेते हैं, तो E1 क्या होगा? हाफ m V1 स्क्वायर माइनस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी GMM by R1. Okay, E will be equal to half into m into V1 square. So V1 will this, so it will be 2gm by R1 plus R2 into R2 by R1 minus GMM by R1. Okay, so from here E will be equal to 2 से 2 will be cancelled, GMM by R1 will be common. The remaining term will be 1 by R1 plus R2, not 1, R2 by R1 plus R2 into R1, no, R1 is common, minus 1. Okay. So E will be GMM by R1 into, so here it will be in the denominator R1 plus R2. Okay. And in the numerator will be R1, R2 minus R1 minus R2. So R2 will be cancelled, remaining term will be minus R1. R1 and R1 will also be cancelled. So E will be equal to minus GMM is equal to minus GMM. What is R1 plus R2 in terms of A? 2A. Okay. So energy is minus GMM by 2A or minus GMM by R1 plus R2. तो देखिए एनर्जी नेगेटिव आ रहा है ना, और आना भी चाहिए क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए क्या कंडीशन है?
आप लोग आवाज नहीं आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है। Energy is तो इलिप्टिकल Yes, ऑर्बिट्स के लिए क्या कंडीशन है? negative energy. एनर्जी लेस देन 0 होना चाहिए. Okay? So this is energy. Now calculate angular momentum. So angular momentum is also conserved. So L is equal to L1 is equal to L2. L is equal to N1 लिख देते हैं. तो क्या है? M V1 into R1. और V1 हमें पता है. तो फाइनल एक्सप्रेशन में लिख ले रहा हूं. कैलकुलेशन के बाद आएगा फाइनल एक्सप्रेशन. L is equal to M into under root of 2gm R1 R2 divided by R1 plus R2 is equal to M into under root of gm b square divided by a. So this is the angular momentum. अब बताइए, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो क्या होगा? तो देखिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है और केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एरियल स्पीड इज व्हाट? constant. कांस्टेंट. ठीक है, तो एरियल स्पीड इज कांस्टेंट और टोटल एरिया कितना कवर करेगा फुल रिवॉल्यूशन में? जितना एरिया एलिप्स का होगा, है ना? तो टाइम इज व्हाट? फॉर एग्जांपल टाइम जो हमारे वेलोसिटी में केस में होता था, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता था, है ना? सो इन दिस केस टाइम इज टोटल एरिया डिवाइडेड बाय क्या होगा? एरियल स्पीड. Time. Yes, sir. राइट? ये कब लगा सकते थे? जब स्पीड कांस्टेंट हो, है ना? Yes, sir. तो बताइए, टोटल एरिया कितना होता है एलिप्स का? अगर ए सेमी माइनर है पाई और AB. पाई ए भी होता है. Yes, sir. डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड क्या होती है? एरियल स्पीड कितनी है? L over 2m लिखवाया था हाँ हमने सर. आपको लास्ट हाँ क्लास में, सर. हाँ सर. है ना? DA by एरियल dt. स्पीड इज L over 2m. What is T? T is given by 2 pi 2m 2 pi AB into m by L. 2 pi AB into m by L. So it will be 2 pi AB into m by L. तो ये है हमारा, कितना है? m. L है ये m into अंडर रूट ऑफ gm b स्क्वायर बाय a. तो यहां से बताइए क्या हो जाएगा? स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट gm b की पावर क्या बचेगी?
ऊपर b की पावर 1 है और नीचे अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b और b कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ऊपर a की पावर 1 है और यहां से नीचे से ऊपर a की पावर 1/2 जाएगी, तो क्या आएगा, a की 3 पावर बाय 2 हो जाएगा। 3/2 आ जाएगा। तो देखिए केपलर का थर्ड लॉ आ गया, t इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 3/2 आ गया। यस सर। यस सर। t आपका जो है, अच्छा, और यहाँ पर नीचे जो m है अंडर रूट में, ये किसका मास है, शन का मास। सन का मास है ये, है ना। प्लेनेट का मास तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सन का मास है ये, मतलब फोकस का मास। लिख लीजिए इसे। देखिए, I'll just come in 2 minutes.
Okay. So now let's move to the next slide. So now let's study. Yes. सर अगर सर्कुलर मोशन हो, मतलब सर्कुलर पाथ बनाए, ए और बी दोनों सेम हो जाए, तो जो फार्मूला है उसमें क्या क्या चेंजिंग आ सकते हैं? बस ए और बी बराबर को आर रख दो। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर हो जाता है ना। यस सर। तो बस जहां पर ए और बी दोनों को आर रख दो। ओके सर। Okay. So now we are going to study motion of an object. So see, till now we have studied the motion of the earth around the sun, okay, or motion of the moon around the earth, okay. So planetary motion देखा था। अब हम क्या करेंगे कि मान लो अर्थ है और there is a comet which is passing by, है ना, तो उसका जो ऑब्जेक्ट पासिंग बाय अर्थ है और पासिंग बाय सन है, उसका मोशन स्टडी करेंगे। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पासिंग बाय अर्थ। ओके, तो सपोज दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज अर्थ, द रेडियस इज आर, एंड सपोज there is an object which is coming from large distance. Suppose an object है वो infinity से आ रहा है इधर, v infinity velocity से आ रहा है, okay? अब दूर स्पेस में चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो v infinity कांस्टेंट रहेगा, बट जैसे जैसे सपोज दिस इज b, जैसे जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, तो डिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन आपका है, सपोज हियर इट इज वेलोसिटी v, तो कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ b, मिनिमम वैल्यू ऑफ b, और हियर b इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स में इस तरह की प्रॉब्लम से b को इम्पैक्ट पैरामीटर भी कहा जाता है। Calculate minimum value of b so that the object does not strike the earth. तो हमें निकालना है इस b की मिनिमम वैल्यू, ताकि जो ऑब्जेक्ट है डज नॉट स्ट्राइक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डज नॉट स्ट्राइक, तो जस्ट स्ट्राइक कब करेगा, जब एकदम सरफेस से पास होगा। सर इसका टोटल एनर्जी सरफेस से पास होगा तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वहां पे r हो जाएगी, है ना, कैपिटल R। तो सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, ओके। तो बताइए सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब क्या है, L1 इज इक्वल टू L2, ओके। बताइए पॉइंट नंबर 1 पे जो O है हमारा सेंटर, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है बताइए। MBV, MBV in what है direction? ना, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू p। तो p तो इसका है mv0, r परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन पे सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो कितना है, b है ना। तो L1 इज m v इंफिनिटी इंटू b, ओके, इज इक्वल टू L2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v है तो
MBR. है ना? MBR. अब यहाँ पे R परपेंडिकुलर कितना है? R है, तो MV into R. Okay. So M and M will be cancelled. तो from here आपका आ जाएगा V is equal to V infinity into B by R. Okay. So this is equation. अब हमारी energy is also conserved. So E1 is equal to E2 करो. तो E1 क्या होगा बताइए? बोलिए. Half MV infinity square. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इन्फिनिटी पे तो 0. है ना, GMM बाय इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगी. इज इक्वल टू E2 क्या होगा? Half MV square. हाफ MV स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Minus GM by R. तो यहां से स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएगा आपका. ओके, सो आपका आ जाएगा यहां से V इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस 2GM बाय R. तो V इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर कितना है यहां से? V इंफिनिटी B बाय R, तो V इंफिनिटी स्क्वायर B स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2GM बाय R. ठीक है, तो हमें निकालना है B स्क्वायर, राइट? तो आपका आ जाएगा 2GM बाय R इज इक्वल टू V इंफिनिटी स्क्वायर इंटू V इंफिनिटी स्क्वायर इंटू यहां पर आएगा B स्क्वायर B स्क्वायर माइनस, हमें निकालना है B, राइट? यस, वी हैव टू फाइंड B. तो B आएगा कैसे? यस, तो आपका यहां से आ जाएगा V इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू V इंफिनिटी प्लस 2GM बाय R इज इक्वल टू V इंफिनिटी स्क्वायर इंटू B स्क्वायर बाय R स्क्वायर. ओके, तो आपका यहां से आ जाएगा. अब बताइए 2GM बाय R को हम क्या लिख सकते हैं? कल कैलकुलेट की थी क्वांटिटी हमने, क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी सर. Escape velocity. एस्केप वेलोसिटी, है ना? तो V इंफिनिटी स्क्वायर प्लस V एस्केप स्क्वायर, ये V एस्केप स्क्वायर है, इज इक्वल टू V इंफिनिटी स्क्वायर B स्क्वायर बाय R स्क्वायर. तो यहां से B आ जाएगा आपका, इधर जाएंगे तो R तो कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ V इंफिनिटी में यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस V एस्केप स्क्वायर बाय V इंफिनिटी स्क्वायर. तो ये है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर B. ठीक है, तो सपोज दिस इज B नॉट, तो इफ B इज लेस देन B नॉट तो क्या होगा? स्ट्राइक हो जाएगा, है ना? ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक टू अर्थ, मतलब क्रैश हो जाएगा अर्थ. और इफ B is greater than B naught, then object will
will not strike. Not strike मतलब fly by earth. तो ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट हो चुका है। सर वहां पे L1 में आपने B क्यों लिखा है, ये समझा दीजिए। क्या हुआ यहाँ पर? यस सर। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू आर परपेंडिकुलर, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, सर राइट? सर यस और नो? सर हेलो, हेलो सर, आवाज एल क्या होता है, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो एम वी इन्फिनिटी हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन पे उस पॉइंट से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो लाइन ऑफ मोशन आपकी ये है और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, बी है। यस सर। सर ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्या हुआ? ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बी इज लेस देन बी नॉट। हाँ तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि ये क्वांटिटी कैलकुलेट की ना ताकि जस्ट आर पे आ जाए वो। तो अगर ये बी छोटा होगा तो ये क्रैश हो जाएगा अर्थ में। हमने बी कैसे कैलकुलेट किया, ये मान के कि पार्टिकल जस्ट पास हो रहा है, मतलब सरफेस से पास हो रहा है आर से। तो बी अगर इससे कम होगा तो क्रैश हो जाएगा, बी अगर इससे ज्यादा होगा तो फ्लाई बाय हो जाएगा। हो गया। लिख लिया सबने? यस। ओके, अच्छा बताइए आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रखा है? यस सर। कहाँ तक कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहाँ तक हो गया? पूरा हो गया। हो गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का है चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालना है सब पता है? यस ओके। सर 30 जुलाई बैच का नहीं हो पाया। सर 30 जुलाई बैच में अभी ज्यादा कुछ स्टार्ट नहीं किया EMT में। अच्छा अच्छा, 30 जुलाई 25 में भी सर कुछ नहीं हुआ है, सेम ही चल रहा है उन लोगों का। ओके। So now let us do relation between electrostatic and gravitation. Because electrostatics is also what force? 1 by r square force. यस सेंट्रल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है इधर, एंड इधर इट इज ग्रेविटेशन। दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज देखेंगे हम, क्योंकि एक के पता है आपको कॉन्सेप्ट्स तो दूसरे पे अपने आप लग जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बताइए फोर्स क्या होता है? क्यू टाइम्स Q1 Q2 के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, आर कैप में। और ग्रेविटी में फोर्स क्या होता है, एफ ग्रेविटी माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो इक्विवेलेंस अगर देखेंगे हम तो कैपिटल क्यू किसके इक्विवेलेंट है,
मास m के, स्मॉल q किसके इक्विवेलेंट है? स्मॉल m के। k किसके इक्विवेलेंट है? k किसके इक्विवेलेंट है? माइनस जी के, है ना? और k की एक और वैल्यू क्या होती है? 1/4 pi epsilon naught। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्विवेलेंट है? माइनस 1 माइनस 1/4 पाई जी। ठीक है, तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन। करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स को किस तरह से कंपेयर करेंगे? तो जो भी आपके फॉर्मूलेस इधर से डिराइव हुए हैं, बस इन क्वांटिटीज को आप ये क्वांटिटी से रिप्लेस कर दो, तो ग्रेविटेशन के लिए भी वैलिड होगा वो, है ना? तो अब देखिए आपका फ्लक्स लॉ क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में? E dot D एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे? के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू के द्वारा, बड़े क्यू के द्वारा, है ना? और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा फिर? Km by R square माइनस जी एम बाय GM आर। by R square। ठीक है ना? दिस इज फील्ड, ये फोर्स है आपका और ये है फील्ड। अब बताइए, अच्छा तो बताइए यहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स लॉ क्या होता था? क्लोज लूप ऑफ ई डॉट डी एस Equal to Q by epsilon naught। कितना होता था? Q by epsilon naught। Q enclosed divided by क्यू epsilon। एनक्लोज्ड बाय क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं ग्रेविटेशन में लिखूंगा, तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डीएस क्या हो जाएगा? तो क्यू किसका इक्विवेलेंट है? बड़े एम का, तो एम एनक्लोज्ड। और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कितना है? माइनस 1/4 पाई जी। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 पाई जी। ठीक है, अब बताइए यही फ्लक्स लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता था? Divergence of E is equal to डाई डॉट डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या होता था? रो बाई एप्सिलॉन। रो बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब रो ऑफ चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रो कितना होता? चार्ज डेंसिटी होता था ना? यस सर। तो बताइए अगर मुझे डेल्टा डॉट ईजी करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी की जगह क्या हो जाएगा अब? मास डेंसिटी हो जाएगा, तो रो एम हो जाएगा यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय, और एप्सिलॉन नॉट कितना है? 1/एप्सिलॉन नॉट -4 पाई जी। अच्छा, तो एक बार बताइए मुझे, अब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इतना है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है बताइए? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय एम। GM by R square। तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही है। समझ गए? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में भी स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है। So this is gravitational acceleration.
सर ये फ्लक्स वाला पार्ट क्या दिखाता है सर ग्रेविटेशनल वाले पार्ट में? ग्रेविटेशन वाले देखिए, इस फ्लक्स वाले पार्ट से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आप वो जो होती है ना कि किसी स्फेयर का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। जैसे हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते हैं, कोई चार्ज है तो उस चार्ज का ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा स्पेस में। तो अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके ईजी निकाल सकते थे, हाँ ई, सर। है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे हम। लिख लिया सब, नहीं है? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए एक बात। एक स्फेयर दिया हुआ है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, है ना, और मास m। तो मुझे बताइए फॉर r ग्रेटर देन r ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, बताइए। क्या होगा, R प्लस आर स्क्वायर कर देंगे। है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब बाहर के लिए, तो इसकी बात कर रही है। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यस। राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में क्या होता था आंसर, सिर्फ k क्यू बाय आर स्क्वायर होता था। के क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Eg क्या हो जाएगा, माइनस GM बाय आर स्क्वायर। और आर ग्रेटर देन आर। बताइए फॉर आर लेस देन आर के लिए क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था बताइए। मतलब कि चार्ज है कोई Q, उसके अंदर क्या होगा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E। जीरो। जीरो कहां से, सॉलिड स्फीयर है तो। रो कांस्टेंट सर, सॉलिड स्फीयर जितना है तो कितना सरफेस पे होगा। हो, जितना सर कांस्टेंट सरफेस पे नहीं होगा। वो आप हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, चीजें मिक्स कर रहे हैं आप। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, मास एंड टॉस पे डिपेंड करेगा। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, है ना। जो आप बोल रहे हैं ना कि अंदर जीरो होगा, वो आप होलो स्फीयर के लिए बोल रहे हैं। और कोई बोल रहा है कांस्टेंट है, तो वो होलो स्फीयर में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा अंदर, सेम ही लिख देंगे ना इसमें भी, के क्यू बाई आर स्क्वायर करके। इनक्लोज मास पे डिपेंड करेगा ना। है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा Eg इन, दिस इज Eg आउट। लीनियरली। Eg इन कितना हो जाएगा, माइनस GM बाय आर क्यूब इंटू आर, ये होगा इनसाइड। ये आप लोगों ने आई एम श्योर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैलकुलेट किया होगा यस सर। कि सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होता है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और बाहर होता है 1 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो Eg कुछ इस तरीके से जाता है, आपको याद होगा। दिस इज R, दिस इज E, और दिस इज R। तो इस तरीके से जाता है, आपको याद होगा, यस सर। है ना। यस सर, यहाँ किए पर हैं point में प्रोपोर्शनल टू R है, लीनियरली R के साथ जा रहा है, और इधर फिर 1 बाय आर स्क्वायर से डीके हो रहा है। ये ग्राफ देखा था आपने। यस सर। यस सर, किए हैं point। तो आप लोग ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप पहली बार देख रहे हैं सब फॉर्मूले। आप बोल रहे हैं कि कोई जीरो बोल रहा है, कोई बोल रहा है कांस्टेंट। ओके, तो आउटसाइड जो है वो ये है, और इनसाइड ये है, ठीक है। अब बताइए
what is gravitational field or gravitational acceleration? At distance d above the earth surface, है ना? तो d above the earth surface, तो ये r है जैसे, और d above मतलब ये d यहां पर देखना है। तो बताइए इस केस में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B plus R. r प्लस डी हो जाएगी। Yes. और फॉर्मूला आउट वाला लगेगा, इन वाला लगेगा? आउट बोले आउट वाला। Eg आउट एट डिस्टेंस d हो जाएगा आपका -gm बाय r प्लस टी का स्क्वायर, और यही आपका Ag भी होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी यही होगा। तो यहां से आपका आ जाएगा, कितना आएगा? Ag इज इक्वल टू, तो यहां से आपका देखो, अगर इफ आपका जो d है वो r से काफी छोटा है, मतलब जो हाइट, जिस हाइट की बात कर रहा हूं काफी कम है r से, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि Ag इज इक्वल टू -gm बाय r स्क्वायर, अगर कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, है ना? तो यहां पर क्या बचेगा? ये 1 प्लस d बाय r का स्क्वायर, है ना? दिस इज -gm बाय r स्क्वायर इंटू 1 प्लस d बाय r टू द पावर -2। अब d बाय r काफी छोटा है, तो 1 प्लस x टू द पावर सम पावर, तो उसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर सकते हैं हम। Yes, sir. तो आपका Ag क्या आ जाएगा बताइए? -gm बाय r स्क्वायर इंटू 1 minus 2D by R. 2d बाय r। Ag इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? g होता है g। Yes, sir. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा g, आपका जो g 10 मीटर्स वाला है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर वाला, Ag आपका हो जाएगा -g1 - 2d बाय r। तो बताइए d इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सरफेस पे एक्सीलरेशन आ जाएगा, Yes, है sir. ना? तो d इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सरफेस पे कितना आएगा? -g आएगा, और होता है -g सरफेस पे, है ना? माइनस क्या सिग्निफाई करता है? डाउनवर्ड्स, है ना? तो Yes, sir. किसी भी डिस्टेंस पे जो कि r से काफी कम है, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो जैसे जैसे बताइए d की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा, Yes, sir. है ना? तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम होते जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जैसे 10 है, थोड़ी हाइट पे जाएंगे तो 9.5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ऐसे। तो ये है इलेक्ट्रिक Eg का है ग्राफ, या Ag का भी यही ग्राफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही है ना? तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? सरफेस पे, उसके बाद में कम होता जाएगा। ठीक है, ओके, हो गया ना? सर लिख हम लिया लोग सबने? डी मतलब डी कौन से डिस्टेंस के लिए लगाएंगे सर? यूजुअली कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला जो d एक्चुअल में जो है आया? सरफेस से डिस्टेंस है,
सर मैं बोल रहा हूँ कि यूजुअली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, जो बिना बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करे करा है हमने, वो है सर? किसमें? सर ए निकालने के लिए आपने बताया ना, एजी निकालने के लिए हाँ, यूजुअली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? एजी डायरेक्ट के वो लिए ये वाला है ना, डी माइनस 2d/r। वही कंडीशन है ना सर हमारे पास उसमें? हाँ, ये D by कंडीशन 2 है। अगर किसी जनरल डी के लिए लगाना हो तो ये सही है, जनरल उससे डी भी के लिए तो करेंगे ये। सर। सर अगर इससे भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा ना, अगर छोटे डिस्टेंसेस के लिए भी कर रहे हैं अपन तो। किसके लिए करेंगे तो? छोटे डिस्टेंसेस के लिए सर हाँ, कर छोटे रहे हैं, डिस्टेंस के लिए सेम आएगा। बायनोमियल यूज करे नहीं करे सेम आएगा ना आंसर? हाँ हाँ, ओके। ओके, लिख लिया सबने ये? Yes, sir. ओके, तो ये तो आउट हो गया। अब बताइए, ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन एट डेप्थ डी। तो डेप्थ डी मतलब क्या है? इनवर्ड्स है, इनसाइड है स्फीयर के? तो डेप्थ डी मतलब ये आर है और ये डेप्थ डी पे। तो अब बताइए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर माइनस डी हो जाएगी। यस सर। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आउट वाला या इन वाला? फॉर्मूला इन वाला लगेगा ना, क्योंकि अब अंदर की बात कर रहे हैं हम। यस सर। तो आ जाएगा आपका -gm/r³ इंटू आर। आर आपका हो जाएगा आर माइनस डी, और यही आपका एजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनवर्ड एक्सीलरेशन है। इनवर्ड की मतलब अर्थ के इनसाइड डेप्थ डी पे और आउटसाइड अबव हाइट डी पे, जो पहले हमने डिराइव किया वो वाला फॉर्मूला है। ओके, अब क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, अगर इसको मैं स्मॉल जी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई जी इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू -gm/r², 1 - d/r, है ना? और gm/r² क्या है? g है। तो ई जी इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू -g 1 - d/r, जी की फॉर्म में। ये जी वाला है 10 मीटर्स वाला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिए एक। क्वेश्चन लिखिए, रेडियस ऑफ अर्थ is 6400 kilometers. Radius of Earth is 6400 kilometers. Okay. At what height? Above the Earth's surface? At what height above the Earth's surface the value of acceleration due to gravity will become 1% less. 1% less
then the surface, then the surface. ठीक है, तो कितनी हाइट पे 1% कम होगा? तो 1% कम होगा तो सबसे पहले हाइट h मान लेते हैं कुछ, तो 1% कम होगा मतलब Ag कितना होगा? सरफेस पे Ag कितना होता है? -g होता है, यस सर। और सरफेस पे -g होता है, तो 1% कम मतलब 0.99 जी। ठीक है, 99% ही बचा उसका। ओके, तो बताइए Ag कितना होता है? हमने देखा था डिस्टेंस पे d पे, -g 1 - 2h/r is equal to -0.99 g। ओके, तो आपका आ जाएगा 1 - 2h/r is equal to 0.99। तो यहां से आपका आ जाएगा 0.01 is equal to 2h/r। h आपका आ जाएगा r into 0.01 divided by 2, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 6400। h आपका आ जाएगा 3200 into 0.01, 32 किलोमीटर्स, 32 किलोमीटर्स। सर वो वाले फॉर्मूले से नहीं आ रहा है, किस वाले फॉर्मूले से? जो डायरेक्ट वाला था सर, बिना नहीं, मतलब उससे थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब सर वो माइनस में क्यों आ रहा है डी मेरा? क्या माइनस में सर? मैंने इसको ना -gm/r² के 99/100 टाइम्स कर दिया, वैसे ही होगा ना? ये इसकी वैल्यू -0.99 Ag रखो, 0.99 g। हाँ सर, मतलब वही 99/100 करके वही 0.99 Ag हाँ कर हाँ दिया। हाँ हाँ, तो सर उससे वो नेगेटिव उससे आपका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है सर, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, वो कुछ आपने गड़बड़ ठीक कर है दी सर, होगी। ओके सर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगला लिख लिया सबने? ये लेंगे वो साइन के साथ लेंगे क्या हुआ? सर, एज जो है वो साइन के साथ लेंगे। हाँ, ओके, लिख लिया सबने? ओके, तो अब देखते हैं तो अब बताइए मुझे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर ये डिस्टेंस r है और ये हाइट h है और h काफी छोटा है r से, है ना? तो बताइए व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? v कितना होगा? इस केस में r की वैल्यू कितनी है? r + h, हाँ सर। राइट? सो v क्या होता है? -gm/r। तो v कितना हो जाएगा? -gm/r कितना है? r + h। ओके, तो कितना आएगा ये v? माइनस
जी एम बाय आर, जी एम एम बाय आर, है ना, 1 प्लस एच बाय आर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका, V इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर इंटू 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर -1। अब h काफी छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो v आपका आ जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर इंटू 1 माइनस एच बाय आर। कितना आएगा, v माइनस जी एम एम बाय आर प्लस जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच। तो ये v एट हाइट h, v एट हाइट h, तो ये पोटेंशियल है आपका हाइट h पे। अब बताइए, अगर मुझे सरफेस से लेकर हाइट h तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, वी एच माइनस वी जीरो, यस सर। ये डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है हाइट h पे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, वी एच तो आपको पता है माइनस जी एम एम बाय आर प्लस जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच, माइनस जीरो पे क्या होगा, h को जीरो रख देंगे सिर्फ, है ना। यस सर। h को जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस जी एम एम बाय आर, तो प्लस जी एम एम बाय आर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा आपका, जी एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल जी इंटू एम इंटू एच। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका एम जी एच। देखिए हम एम जी एच फॉर्मूला यूज करते थे ना सरफेस के sir. रिस्पेक्ट में, वो यहां से आता है, हाँ सर। समझ गए, जो Yes, आप sir. कल क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे हाँ जेल सर। साहब, यस सर। राइट। हाँ तो सर। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है, एच, स्टूडेंट्स के लिए। एच काफी छोटा है आर से। तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हाँ यहाँ पे सर। प्लस एम जी एच आ जाता है, यस सर। है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो सर किसी भी पॉइंट पे हम ऐसे निकाल सकते हैं ना स्पेस में, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस पे हम निकाल सकते हैं। हाँ हाँ सही कहा आपने। अगर वो डिस्टेंसेस काफी ज्यादा रिलेटिवली लार्ज रहेंगी तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। और हाँ रिलेट अगर ज्यादा लार्ज रहेगी तो आपको सीधा माइनस जी एम एम बाय आर वाला यूज करना पड़ेगा, फिर आप एम जी एच नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाइट अगर एच आर बाय टू दे रखा है तो आर बाय टू तो बहुत ज्यादा है, हाँ सर। तो आप एम जी आर बाय टू नहीं लिख सकते, फिर आपको माइनस जी एम एम बाय आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब हाइट काफी, तो यही तो रीजन था कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में डील कर रहे थे तो इन द प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी जो हाइट किस रेंज की थी, 100 मीटर, 200 बहुत मीटर, हाँ सर, 50 बहुत मीटर, है कम। ना। और रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, मतलब 1% से भी कम में हम कर रहे थे, है ना। जनरली सर 1% से कम को हम वो लेसर मानते हैं ना। हाँ जनरली 1% से कम को ही आप मानेंगे। सर ये स्पेस में हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं ना, जैसे H1 और H2 दे के रखा है हमें हाँ हाँ अर्थ बिल्कुल के निकाल सकते हो, सरफेस पे। स्पेस में किसी पॉइंट पे H1 H2 दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो वहाँ पे। किसी भी H1 के रेफरेंस में H2 पे भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ ऐसे बिल्कुल, करके हाँ उसके वहाँ पे बीच क्या आ में भी जाएगा, सर H2 हमें माइनस H1 आ जाएगा, सिर्फ H2 माइनस H1। सर अगर वो रिलेटिवली मतलब लार्ज रहेंगी, स्मॉल रहेंगी तब हम ऐसे करेंगे ना डायरेक्टली, नहीं हाँ तो फिर रिलेटिवली हमें स्मॉल प्रॉपर्ली के लिए करना वैलिड है पड़ेगा। ये, सिर्फ रिलेटिवली लार्ज है तो फिर आपको माइनस जी एम बाय आर प्लस H1 और फिर माइनस जी एम बाय आर प्लस H2। ओके सर। सर मतलब अगर हमें किसी हाइट H1 पे और दूसरी हाइट H2 पे दे के रखी है और मतलब पूछा है हमें H1 के रेफरेंस में H2 पे क्या होगा पोटेंशियल, तो सर पहले हाँ हम ग्राउंड के सरफेस के रिस्पेक्ट में हम वो निकाल के करेंगे, डायरेक्टली उनका माइनस कर देंगे। नहीं डायरेक्टली माइनस कर सकते हो ना आप, क्योंकि एमजीएच तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एमजीएच तो पता ही है हमें।
तो mgh2 minus mgh1। और अगर लार्ज रही डिस्टेंस तो फिर वो प्रॉपर्ली हमें कैलकुलेट करके वो हाँ, माइनस तो फिर v is equal to minus gmm by r वाले से प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो कल मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके सर ये वीडियो अपलोड करवा दीजिएगा। वीडियो अपलोड, हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके सर।